السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 30۔ سولوزو سے مائیکل کی ملاقات ایک ریسٹورانٹ میں طے پائی تھی۔ ہیگن کو اس دوران بہت سے انتظامات ہنگامی طور پر کرنے پڑے تھے۔ مائیکل کو بتا دیا گیا تھا کہ جب وہ کام ختم کر کے ریسٹورانٹ سے نکلے گا تو سامنے ہی ایک پرانی سی کار لیے ٹیسیو اس کا منتظر ہوگا جو اس کے ڈرائیور کے فرائض انجام دے گا۔ کار پرانی لیکن اس کا انجن نہایت عمدہ ہوگا اور اس پر جعلی نمبر پلیٹ لگی ہوگی۔ منزا نے اسے وہ گن بھی دکھا دی تھی جو میٹنگ کے دوران کسی طرح اس تک پہنچائی جانی تھی۔ منزا نے اس گن کو استعمال کرنے کی تھوڑی سی مشق بھی کرا دی تھی تاکہ عین وقت پر کوئی معمولی گڑبڑ بھی نہ ہو۔ ایک بار پھر اس نے مائیکل کو ہدایات دیتے ہوئے کہا تھا، گن استعمال کر چکنے کے بعد اس طرح میز کے نیچے پھینک دینا کہ آس پاس موجود افراد میں سے کسی کو پتہ نہ چلے، تاکہ جب تم وہاں سے نکلو تو لوگ یہی سمجھیں کہ تم ابھی مسلح ہی ہو۔ اس صورت میں کوئی تمہارا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تم تیز تیز قدموں سے باہر آنا، لیکن دوڑنا نہیں۔ باہر گاڑی میں ٹیسیو تمہارا منتظر ہوگا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد باقی سارا کام اس پر چھوڑ دینا۔ پھر اس نے ہلکے سے رنگ کا ایک ہیٹ بھی مائیکل کے سر پر رکھ دیا۔ مائیکل ہیٹ پہننے کا عادی نہیں تھا، لیکن منزا نے اسے ہدایت کی، اسے اپنے سر پر ہی رہنے دینا اور چھجا ذرا سا جھکا کر رکھنا۔ اس سے عینی شاہدین کے لیے بھی شناخت کا تعین ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا سنی کو اس ریسٹورانٹ کا نام اور محل وقوع معلوم ہو گیا ہے جس میں سولوزو سے میری ملاقات ہوگی؟ مائیکل نے پوچھا۔ نہیں، منزا نے جواب دیا۔ سولوزو بہت زیادہ احتیاط کر رہا ہے، لیکن بہرحال یہ اندیشہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں گزن پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ رابطے کا آدمی تمہاری واپسی تک ہماری تحویل میں ہوگا۔ وہ بھی ٹٹیکلیا فیملی کا ایک اہم آدمی ہے۔ وہ دونوں آفس نما اس کمرے میں پہنچے جہاں سنی نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ سنی وہاں کاؤچ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کے قریب میز پر ایک پلیٹ میں سینڈوچ کا بچا کھچا ٹکڑا پڑا تھا۔ مائیکل نے اس کا کندھا ہلا کر اسے جگایا تو وہ اٹھ بیٹھا۔ سنبھل کر بیٹھنے کے بعد وہ مائیکل سے مخاطب ہوا۔ سولوزو اور کیپٹن کلسکی تمہیں کہیں راستے میں سے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھائیں گے، لیکن ابھی تک اس ریسٹورانٹ کا نام ہمیں نہیں بتایا گیا جہاں وہ تمہیں لے کر جائیں گے، اور ہمیں کسی طرح بھی اس ریسٹورانٹ کا نام معلوم نہ ہو سکا تو ہم میٹنگ کے دوران گن تمہارے ہاتھوں میں پہنچانے کا بندوبست نہیں کر سکیں گے۔ مائیکل نے پرخیال انداز میں آہستگی سے سر ہلایا اور پانی سے ایک درد کش گولی نگلنے لگا۔ اس کے جبڑے میں اس وقت بھی کافی درد تھا۔ اسی اثناء میں ہیگن کمرے میں آیا اور خاص ٹیلی فون پر اس نے یکے بعد دیگرے کئی لوگوں سے بات کی۔ آخر وہ ریسیور رکھ کر قدرے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، اس ریسٹورانٹ کے نام اور اس محل وقوع کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں معلوم ہو پا رہا۔ وہ بدبخت سولوزو اسے آخری لمحے تک خفیہ رکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ ریسیور سنی نے اٹھایا اور دوسری طرف سے کچھ سننے کے بعد سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چند لمحے وہ انہماک سے بات سنتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ ریسیور رکھنے کے بعد وہ زہریلے انداز میں دھیرے سے ہنسا اور بولا،
सोलोज़ो का पैगाम था। आज रात 8 बजे वो और कैप्टन क्लस्की ब्रॉडवे पर वाक़े जैक के बार के सामने से माइकल को अपने साथ गाड़ी में बिठाएंगे और मुलाकात की जगह पर ले जाएंगे। सोलोज़ो का कहना है कि वो और माइकल इतालवी में बात करेंगे ताकि कैप्टन क्लस्की कुछ न समझ सके। लेकिन माइकल के जाने से पहले राब्ते का आदमी हमारी तहवील में होना चाहिए, एगन बोला। राब्ते का आदमी इस वक्त मेरे घर पर मेरे 3 आदमियों के साथ ताश खेल रहा है, मेंजा ने बताया। यूँ समझो वो हमारी तहवील में ही है। मेरे आदमी उस वक्त तक उसे जाने नहीं देंगे जब तक मैं उन्हें फ़ोन करके हुक्म न दूं। सनी सोफे में धंसते हुए बोला, अभी तक हमें मुलाकात की जगह के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। उसके अंदाज में गुस्सा, बेबसी और झंझलाहट थी। फिर उसने हेगन को मुखातिब किया। हमारे मुखबिर तो टैटाग्लिया फैमिली में भी मौजूद हैं। उन्होंने इस सिलसिले में हमें कोई इत्तला नहीं दी। सोलोज़ो इस मामले में हद से ज़्यादा राजदारी बरत रहा है। उसने अपनी हिफाजत पर भी किसी को मामूर नहीं किया और फ़र्ज़ कर लिया है कि कैप्टन क्लस्की का उसके साथ होना ही काफ़ी है, हेगन बोला। जब वो दोनों माइकल को लेकर रवाना होंगे तो हमारे किसी आदमी को उनका ताक़ुब करना होगा। ये मुमकिन नहीं होगा, सनी ने नफ़ी में सर हिलाया। उन्होंने ख़ुसूसी हिदायत की है कि कोई उनका ताक़ुब करने की कोशिश ना करे और वो इस सिलसिले में पूरा इत्मीनान भी करेंगे। अगर उन्हें शुबा भी हो गया कि कोई उनका ताक़ुब कर रहा है तो मुलाकात ख़तरे में पड़ जाएगी। इसके अलावा पीछा करने वाले से पीछा छुड़ाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। सनी अपने चेहरे पर तशवीश के आसार लिए चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर बोला, ब्रॉडवे पर जैक के बार के सामने जब गाड़ी माइकल को लेने के लिए रुके तो क्यों न माइकल उसी वक्त गाड़ी में मौजूद अफराद को गोलियां मार दे। हेगन नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, और अगर उस वक्त सोलोज़ो गाड़ी में ना हुआ तो? फिर उसे जैसे कुछ याद आया और वो चुटकी बजाते हुए बोला, वो जो पुलिस में हमारा मुखबिर है, सुराग रिसा फिलिप्स, क्यों ना उसे फ़ोन किया जाए। सनी, तुम उसे फ़ोन करो। शायद वो मालूम कर सके कि कैप्टन आज रात कहाँ के लिए रवाना हो रहा है। शायद कैप्टन क्लस्की को राजदारी की इतनी ज़्यादा परवाह ना हो और वो पुलिस स्टेशन में किसी को ये बताकर रुखसत हो कि ज़रूरत के वक्त उससे कहाँ राब्ता किया जा सकता है। इस पहलू पर किस्मत आजमाई करने में कोई हर्ज नहीं। सनी की आंखों में कुछ चमक आ गई। उसने फौरन फ़ोन पर एक नंबर मिलाकर कुछ देर नीची आवाज़ में बात की, फिर रिसीवर रखकर बोला, फिलिप्स ने कहा है कि वो मालूम करने की कोशिश करेगा और चंद मिनट बाद हमें फ़ोन करेगा। उन्हें चंद मिनट के बजाय आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा। फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ फिलिप्स था। उससे बात करते वक्त सनी ने एक कागज़ पर कुछ नोट किया, फिर उसने रिसीवर रखा तो उसके चेहरे पर तनाव बढ़ चुका था, लेकिन उसके साथ उम्मीद का तासुर भी था। शायद यही हमारी मतलूबा जगह हो। वो कागज़ ऊंचा करते हुए बोला, कैप्टन क्लस्की हमेशा ये बताकर पुलिस स्टेशन से रुखसत होता है कि ज़रूरत के वक्त उससे कहाँ राब्ता किया जा सकता है। आज वो ये बताकर निकला है कि 8 से 10 बजे के दरमियान वो ब्रॉन्क्स के इलाके में लियोना रेस्टोरेंट में होगा। मैंने तो ये नाम पहली बार सुना है। किसी को इसके बारे में कुछ मालूम है? मुझे मालूम है, टेसियो फौरन बोला। मैंने ये रेस्टोरेंट देखा हुआ है। छोटा है और इसमें ज़्यादातर फैमिलीज़ आती हैं। उसमें खासे बड़े बड़े बूथ हैं जिनमें लोग आराम से बैठकर बातचीत कर सकते हैं। सोलोज़ो ने अपने मकसद के लिए अच्छी जगह का इंतखाब किया है। फिर वो एक कागज़ पर बाकायदा नक्शा बनाकर माइकल को रेस्टोरेंट की साख्त के बारे में समझाने लगा और ये भी बताने लगा कि वो बाहर कहाँ उसका मुंतज़िर होगा और किस तरह गाड़ी की हेडलाइट से उसे सिग्नल देगा। ये सब कुछ समझाते हुए वो बोला, और अगर अंदर कोई गड़बड़ हो जाए तो चीख कर मुझे पुकारना। मैं आकर तुम्हें वहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा। फिर वो मेंजा से मुखातिब हुआ, तुम्हें जल्दी से अपने किसी आदमी को लियोना रेस्टोरेंट भेजना होगा।
ताकि वो पहले ही वहाँ गन छुपा दे। इस रेस्टोरेंट के टॉयलेट पुरानी साख्त के हैं। उनमें फ्लश की टैंकी और दीवार के दरमियान कुछ फासला है। अपने आदमी को हिदायत कर दो कि गन उस जगह फ्लश की टैंकी के पिछली तरफ टेप से चिपका दे। फिर उसका रुख माइकल की तरफ हो गया। वो जब कार में तुम्हारी तलाशी ले चुकेंगे और देख चुके होंगे कि तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, तो वो तुम्हारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे। रेस्टोरेंट में कुछ देर बात करने के बाद तुम उनसे वॉशरूम जाने की इजाज़त तलब करना। वो यकीनन यही समझेंगे कि तुम नर्वस हो। इन हालात में तुम्हारा वॉशरूम जाना उन्हें चौंकाने का बाइस नहीं बनेगा, और वॉशरूम से आने के बाद वक्त ज़ाया मत करना, बल्कि दोबारा बैठने की भी ज़रूरत नहीं। फ़ौरन अपना काम करना। दोनों के सर में 2-2 गोलियां उतारना, ताकि बचने का कोई इम्कान ना रहे। इसके बाद दौड़े बगैर जितनी तेज़ी से मुमकिन हो रेस्टोरेंट से निकल आना। माइकल के अलावा सनी भी ये सब कुछ इन्हिमाक से सुन रहा था। मेंजा ने माइकल को गो इत्मीनान दिलाया। गन तुम्हें वहाँ के टॉयलेट में फ्लश की टंकी के पीछे चिपकी हुई मिल जाएगी। मैं अपने एक बेहतरीन आदमी को इस काम के लिए रवाना कर रहा हूँ। मेंजा और टेसियो कमरे से चले गए। एगन बोला, सनी, क्या माइकल को ब्रॉडवे तक मैं गाड़ी में ले जाऊं? नहीं, सनी ने बिला तामुल जवाब दिया। मैं चाहता हूं तुम यहीं रहो। मुझे तुम्हारी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जो ही माइकल अपना काम ख़त्म करेगा, हमारा काम शुरू हो जाएगा। तुमने अखबार वालों को होशियार कर दिया है? हेगन असबात में सर हिलाते हुए बोला, जो ही ये वाक़या रूनुमा होगा, मैं उन्हें मालूमात फराहम करना शुरू कर दूंगा। सनी उठकर माइकल के सामने जा खड़ा हुआ और गर्मजोशी से उससे मुसाफिहा करते हुए बोला, अच्छा बच्चे, तुम्हारा काम शुरू हो रहा है। मैं मामा को समझा दूंगा कि तुम गायब होने से पहले उनसे क्यों नहीं मिल सके, और मुनासिब वक्त पर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी तुम्हारी खैरियत से आगाह कर दूंगा। ओके? ओके, माइकल ने फौजियों वाली मुस्तैदी से कहा और एक लम्हे के तवक्कुफ से पूछा, तुम्हारे ख्याल में मैं कितने अरसे बाद वापस आ सकूंगा? कम अज कम 1 साल तो लग ही जाएगा, सनी ने जवाब दिया। इसका इन्हिसार बहुत सी बातों पर है, हेगन बोला। अखबारात से हम किस हद तक अपने हक में काम लेने में कामयाब होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट हमें सबक सिखाने के बजाय अपनी इज्जत बचाने की किस हद तक फिक्र करता है। दूसरी फैमिलीज कितनी शिद्दत से अपना रद्द अमल जाहिर करती हैं। इन सब बातों पर तुम्हारी वापसी का इन्हिसार होगा। बहरहाल, ये तो तय है कि बहुत हंगामा, बहुत खून खराबा और बहुत हलचल मचेगी। बाब नंबर 31 अगली वीडियो में सुने।